आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। तेलंगाना सरमायाकारी के लिए महफूज मुकाम, मालाबार जेम्स की 750 करोड़ की सरमायाकारी। महेश्वरम में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की सगे बुनियाद तकरीब से केटीआर का खिताब। तलबा तालीम के मैदान में बेहतर मुजाहरा करके मुस्तकबिल को संवारें। ग्रेजुएशन डे तकरीब से वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। रियासती वजीर सबिता इंद्र रेड्डी ने मुनुगुरु के नामपल्ली मंडल में चलाई इंतखाबी मुहिम। टीआरएस उम्मीदवार को कामयाब बनाने की राय दहिंदों से की अपील। हुकूमत तेलंगाना का मिशन अवामी मसाइल को हल करना है। जैक कॉलोनी में मुनक्किदा इजलास से रियासती वजीर श्रीवास यादव का खिताब। बाबा मिसाइल डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की उम्र पैदाइश तकारीब। तेलंगाना के मुख्तलिफ मकामात पर सियासी और अवामी कायदीन ने पेश किया खराज। शुमाल मशरक़ी रियासतों को आजादी के बाद नजरअंदाज किया गया। दिल्ली में मुनक्किदा प्रोग्राम से वजीर दिफा राजनाथ सिंह का खिताब। और पाकिस्तान दुनिया के खतरनाक तरीन ममालिक में से एक, अमेरिकी सदर जो बाइडेन का बयान। और अब खबरें तफसील से। वजीर आईटी और बल्दी नज़्म व नस्क के तारक रामाराव ने रंगारेड्डी जिले के तहत महेश्वरम में मालाबार जेम्स एंड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का संग बुनियाद रखा। तकरीब में महकमा सनत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जयश रंजन, डायरेक्टर इंडस्ट्रीज डी कृष्णा भास्कर, मालाबार ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन अहमद एमपी, वाइस चेयरमैन अब्दुल सलाम केपी ने शिरकत की। इस मौके पर मुनक्किदा इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए रियासती वजीर तारक रामाराव ने कहा कि मालाबार जेम्स एंड ज्वेलर्स ने इस कंपनी के जरिए 750 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की और इस कंपनी के जरिए 2750 अफराद को रोजगार के मौके फराहम किए जाएंगे। मालाबार जेम्स एंड ज्वेलर्स की जानिब से तेलंगाना में पहले ही 17 रिटेल शोरूम्स खोले गए हैं, जिसके तहत 1000 से ज्यादा अफराद के लिए रोजगार के मौके पैदा किए गए हैं। हुक्काम ने बताया कि कंपनी इन शोरूम्स को वसअत देने के लिए इक़दाम कर रही है। Mr. Ahmad MP, the chairman of Malabar Group, Mr. Abdul Salam KP, the vice chairman of Malabar Group, Mr. Ashar, who is MD of India Operations, Mr. Nishad, who is the Group Executive Director, Shri Jayesh Ranjan, our Principal Secretary of Industry and Commerce, Krishna Bhaskar Garu, the Commissioner of Industry, Government of Telangana, MD of PSIIC, Shri Narasimha Reddy, to all the members of the Malabar family, to the customers, to the suppliers, to the vendors, to the partners, and to our friends from the media. I firstly would like to apologize for joining in late. It was an unavoidable situation, so therefore I was delayed. My apologies for that. I would like to compliment and congratulate the Malabar Group for choosing Hyderabad. No, this is their largest factory, possibly in India and also by extension, possibly in the world as well. I'm told that they will be investing about 750 crores of rupees, Indian rupees, and providing employment to 2,750 people. And it would be a state-of-the-art refinery and manufacturing facility. So I think a big round of applause to Malabar Group for choosing Hyderabad to Thank you very much. As the Honorable Chairman pointed out, very eloquently, there is a history of fine craftsmanship in Telangana with respect to jewelry making. In fact, a couple of months ago, myself, Jayesh Ranjan, we were all in a town called Narayanpet, which is about 100 plus kilometers away from Hyderabad. And when I was told this, I was a little surprised. The honorable local legislator, the local MLA, Rajendra Reddy, he came to me and he told me that, we in this area in Narayanpet have a
long cherished history of jewelry making, especially gold jewelry. I was a little surprised. I said, what makes this place special? He said, we have customers coming from Hyderabad. We have customers and suppliers coming all the way from Bidar, Raichur, other parts of Karnataka, because of the fine craftsmanship. And he had requested me to actually sanction a gold souk in that area. I was surprised because, the only gold souk I saw in my life is in Dubai. So I was like, okay, Narayanpet competing with Dubai, initially didn't really gel very well in my mind. But then later when I started thinking, later when I started understanding the nature of the business, as Mr. Suraj from Malabar Gold and Diamonds, retail operation head. हम लोग आज बहुत खुशी है अपना माहेश्वरम में है तेलंगाना का इंडिया का बिगेस्ट फैक्ट्री ओपन फैक्ट्री का स्टोन फाउंडेशन आज करा वो ऑनरेबल मिनिस्टर KTR गारू वो करा and we are giving opportunities job opportunity for 2,700 employees and it is 750 crore investment to Telangana. From Malabar Gold, we are starting with starting for a very aggressive plan in Hyderabad. I mean, this is a factory which is coming up in the next 1 year, and we will be investing around 750 crores rupees here in this factory to the manufacturing. This will be the biggest, and 50 people, mostly from this Hyderabad and Telangana area. And the products which we buy manufactured here, 40% of the products we are planning to export to international markets. Malabar as a retail brand is expanding to many countries. At the moment we are present in 10 countries, and in this year we are adding 6 more. हैदराबाद शहर के कलवत में वाक़े उर्दू मस्कन हॉल में विजनरी डिग्री कॉलेज की ग्रेजुएशन डे तकरीब का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने तलबा को मशवरा दिया कि वह दौर हाजिर में तालीम के मैदान में आगे आए और मुसाबक़ती दौर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। उन्होंने तलबा पर जोर दिया कि वह तालीमी मैदान में अपनी तालीमी सलाहियतों का बेहतरीन मुज़ाहरा करते हुए न सिर्फ मुल्क बल्कि अपनी रियासत और अपने वालिदैन का नाम भी रोशन करें। और आज खास तौर से हमारे स्टूडेंट्स आ गए, मेरे नौजवानों, मेरे दोस्तों और भाइयों बहनों, तालीम के मामले में यकीनन हम लोग वही लोग किस्मत वाले हैं जिन्हें तालीम मिल सकती है। तालीम एक बहुत बड़ा सरमाया है, उसकी मिसाल किसी से भी नहीं ली जा सकती। और टीचर्स यकीनन हमारे लिए फरिश्ते के मानंद है। उन्होंने अपने बच्चों की तरह आपको तालीम देते हैं, हम उनका बहुत एहतराम करना चाहिए। एक बात सुनाना चाहता हूँ, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब बहुत ज्यादा एटम बम इस मुल्क पर पड़े थे, वहां जब एक मीटिंग हुई, वहां कहा गया कि हमारे फौजी मर चुके हैं, प्रॉपर्टी तबाह हो गई, और हमारे टीचर्स महफूज है। जिस मुल्क में टीचर्स रहते हैं वो मुल्क तरक्की कर सकता है। तो इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ तालीम की अहमियत, तालीम बहुत जरूरी है हमारे लिए। आजकल तो खास तौर से हमारी कैबिनेट को तालीम की जरूरत है, और लड़कों के साथ लड़कियों की तालीम बड़ी अफजल तालीम है। मुजाहिद साहब ने बड़ी अच्छी बात कही है कि नौजवानों की जो तालीम होती है वो अपने मुल्क, अपने खानदान, अपने फैमिली को संभाल सकते हैं, और लड़कियों की जो तालीम उससे अफजल होती है वो सारे गुब्बे को तालीम दे सकते हैं। तो तालीम की अहमियत इस्लाम में भी बहुत ज़्यादा है, दूसरे मजहबों में मैं नहीं जानता हूँ, इस्लाम में प्यारे रसूल ने सबसे जो पहले नाज़िल हुई थी इक़रा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, तो तालीम के बारे में और बहुत मशहूर कई वाक़यात है कि आदमी ने चीन तक भी जाकर तालीम हासिल करना है तो जल्दी हासिल करने की हिदायत दी गई है। तो तालीम से ही हम तरक्की कर सकते हैं, बगैर तालीम के नहीं कर सकते। और जो लोग तालीम देना चाहते हैं, जैसा हमारे फारूक भाई की तरह, यकीनन वो बड़े 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 महान इंसान होते हैं जो दूसरों को तालीम देना चाहते हैं। अभी इस्लाम का साथी नहीं है, हमारे जमात इस्लामी में हम अपनी तरफ से बच्चों को अच्छी तालीम दे रहे हैं, कुछ फंड भी दे रहे हैं, तो बड़ी खुशी की बात है। एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, तेलंगाना तहरीक में अगर सबसे दानिश्वर को लोग थे या साथ देने वाले थे तो जमात इस्लामी थी, जो हमारे मूवमेंट को साथी, उसको दूसरे लोग डरते थे मूवमेंट को साथ देने के लिए। तो मैं सभी जमात इस्लामी के तमाम जिम्मेदारों का मैं
मोदी की मेहनत से शुक्रिया अदा करता हूँ। और तालीम के बारे में जमात इस्लामी में भी हमेशा आगे बढ़ते रहे और तालीम बहुत जरूरी है। जब तक हम तालीम हासिल नहीं करेंगे तब तक हम तरक्की नहीं कर सकते। तालीम एक ऐसी चीज है, जिस तरह एक पत्थर जो गोलगुंडे से निकला था वो तराशा के बाद मजबूर बना, वो यहाँ से कहाँ तक चलेगा आप जानते हैं। तो तालीम वही है, बच्चे अगर तालीम हासिल करेंगे और बच्चे तालीम हासिल करेंगे तो खुशहाल जिंदगी गुजार सकते हैं। ग्रेजुएशन डे सेरेमनी था हमारे कॉलेज का। लास्ट 18 ईयर से एजुकेशन फील्ड में मैं वर्क कर रही हूँ। मैं अपनी लाइफ एज ए सोशल वर्कर स्टार्ट की थी, लेकिन मैं मुतमईन नहीं भी थी कि टेलरिंग, कारचोब वगैरह इससे कौम आगे नहीं बढ़ सकती। इसलिए मेरा इरादा हुआ कि मैं अपनी कौम को तालीम से आगे लेके जा सकूँ। इसी मकसद वजीर बल्दी रजमुनस और आईटी केटी रामाराव की जानिब से मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की जानिब से मालाबार जेम्स एंड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग तेलंगाना फैक्ट्री जनरल पार्क महेश्वरम की संग बुनियाद तकरीब के बाद मालाबार गोल्ड के चेयरमैन अहमद पीएम की सरकर्दगी में एक वफद ने वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से उनके दफ्तर पहुंचकर मुलाकात की और अपने मुस्तकबिल के मंसूबों और पार्क के अगराज मकासिद से वाकिफ करवाया। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड की जानिब से तेलंगाना में 750 करोड़ की सरमायाकारी की गई है, जिसके जरिए 2750 अफराद को रोजगार के मौके हासिल होंगे। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने चेयरमैन अहमद पीएम को मुबारकबाद दी और रियासत तेलंगाना में सरमायाकारी और रोजगार की फराहमी जैसे मंसूबों पर इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर मालाबार गोल्ड के दीगर जिम्मेदारों के अलावा एग्जीक्यूटिव एडिटर आदाब तेलंगाना नईम गौरी भी मौजूद थे। तेलंगाना के वजीर आईटी और बल्दी नजमुनस के तारक रामाराव ने कहा कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हिंदुस्तान का दर्जा 101 से 107 हो गया है। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म तारक रामाराव, जो रियासत की हुक्मरान जमात टीआरएस के कारगुजार सदर भी हैं, तंजिया अंदाज में एनडीए हुकूमत को एनपीए हुकूमत से ताबीर करते हुए कहा कि ये एक और दिन एनपीए हुकूमत का एक और शानदार कारनामा है। उन्होंने कहा कि नाकामियों को कबूल करने के बजाय यकीनी तौर पर बीजेपी के जोकर्स इस रिपोर्ट को मुखालिफ मुल्क करार देकर मुस्तरद कर देंगे। साथ ही वजीर केटीआर ने हैशटैग अच्छे दिन भी लिखा है। उन्होंने इस खबर के सिलसिले में अंग्रेजी के एक मशहूर अखबार की खबर का तराशा भी लगाया है। मुनगुरु ज़िमनी इंतखाबी मुहिम में टीआरएस की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए टीआरएस पार्टी की जानिब से मुहिम में शिद्दत पैदा कर दी गई है, जहां पर रियासती वज़रा, अरकान असम्बली और अवामी नुमाइंदे पूरे हल्के में घर घर जाकर मुहिम चला रहे हैं। इसके एक हिस्से के तौर पर वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने आज नामपल्ली मंडल के पसनूर में पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर रियासती वजीर सबीता इंदिरा रेड्डी ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से नाफिज करदा तरक्याती और फलाही प्रोग्राम्स पर की जाने वाली मौसर मौलारी से आवाम को वाकिफ करवाते हुए राय दहिंदों को मुनगुरु ज़िमनी इंतखाब में टीआरएस उम्मीदवार को कामयाब बनाने की अपील की। उन्होंने बीजेपी की आमिराना पॉलिसियों को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी को वोट देंगे तो ये मीटर लगा लेने से मुतालिक तहरीर करने के मुतरादिफ होगा। इसलिए किसानों को चाहिए कि वो मुनगुरु ज़िमनी इंतखाब में अपने कीमती वोट का सही इस्तेमाल करते हुए मुखालिफ किसान बीजेपी को शिकस्त फाश दें। सविता रेड्डी ने बीजेपी के दौर इख्तिदार में पकवान गैस की बढ़ती हुई कीमतों के बारे में याद दिलाते हुए खवातीन को बीजेपी के झांसे में आने का मशवरा दिया। वज़ीर अफजाइश मईशान तलसानी श्रीवास यादव ने कहा कि हुकूमत का मिशन अवामी मसाइल को हल करना है। उन्होंने मुख्तलिफ महकमों के अफसरान के हमरा चेक कॉलोनी का दौरा किया। कबल अजीज रियासती वजीर श्रीवास यादव ने वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान के हमरा वक्फ बोर्ड की अराजी का मुआयना किया, जिसे जैक कॉलोनी के मकीन अपनी जरूरियात के लिए लीज पर देने के ख्वाह हैं। बादजा रियासती वजीर श्रीवास यादव, कलेक्टर अमय कुमार, जीएचएमसी कमिश्नर लोकेश कुमार, वाटर वर्क्स के एमडी दाना किशोर और मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों ने जैक कॉलोनी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के एहतमाम कॉलोनी के अवाम के साथ मुनक्किदा इजलास में शिरकत की। 2 घंटे से जायद जारी रहने वाले इस इजलास में कॉलोनी के अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की और उन्हें दरपेश मसाइल से रियासती वजीर को वाकिफ करवाया, जिस पर उन्होंने कॉलोनी के तमाम मसाइल को मुकम्मल तौर पर हल करने का तयखुद दिया। इस मौके पर सनत नगर कॉरपोरेटर कुलन लक्ष्मी बाल रेड्डी, जैक कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन के सदर सूर्य शंकर रेड्डी, सेक्रेटरी मालू प्रसाद, डीआरओ निर्मला, बालनगर डीसीपी संदीप, वाटर वर्क्स के डीओपी कृष्णा, एसीपी गंगाराव, ट्रैफिक सीआई नरहरी, जीएचएमसी डीसी मोहन रेड्डी, वाटर वर्क्स के जीएम भी मौजूद थे। इस मीटिंग में हरिशंकर ई इंदिरा, टाउन प्लानिंग एसीपी रमेश, स्ट्रीट लाइट ई वेंकटेश, एएमओएच भार्गव और दीगर ने शिरकत की।
ఈరోజు తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు మా చెక్కానికి రావడం చాలా సంతోషం. దాదాపు మన చెక్కాలనీలో ఈరోజు సమస్యలన్నీ పరిష్కారానికి అనేక మార్గాల ద్వారా అందరూ ఆఫీసర్లు రావడం జరిగింది. వివిధ డిపార్ట్మెంట్ల నుంచి దాదాపు 2000 మంది లేడీస్ అయితేనేమి జెంట్స్ అయితేనేమి భారీ ఎత్తున బహిరంగ సభ జరగడం జరిగింది. ఈ బహిరంగ సభలో సమస్యలన్నీ ప్రతి ఒక్కరూ మాట్లాడగలిగారు. ఆ సమస్యలకు పరిష్కారం కూడా మంత్రివర్యులు మరియు కార్పొరేటరు తదితర అధికారులు వాటర్ వర్క్స్ అయితేనేమి జిహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ అయితేనేమి అందరికీ ఆ సమస్యలని పూర్తి చేయగలిగినారు. ఇలాగనే మనమందరం కలిసికట్టుగా ఉంటే ఏ కార్యక్రమాన్నైనా విజయవంతంగా చేసుకోగలుగుతాం. మన కాలనీ వాసులందరూ దయచేసి అందరూ ఒక మాట మీద ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. रुकन कानून साज कौंसिल पी कौशिक रेड्डी ने कहा कि रियासत तेलंगाना में वजीर आला के सीआर रियासत के तमाम तबकात के आबाई पेशों को फरोग देते हुए रोजगार के वसी मौके मुकामी सतह पर ही आवाम को फराहम करने के ख्वाहां हैं। खासतौर पर मुदिराज तबका और गंगा पुत्रा कबीले को अफजाइश रमकियात के जरिए रोजगार फराहम करते हुए खुद मुक्तफी बनाने और मुआशी खुशहाली फराहम करने के लिए हुकूमत तेलंगाना ने 100% सब्सिडी पर मछली के बच्चे फराहम किए हैं। वो आज हल्का असम्बली हुजूराबाद के जमीकुंटा टाउन के नाइनी चीरों में केसीआर हुकूमत की जानिब से मज़कूरा तबकात के मुकामी खानदानों के फराहम करदा 1 लाख मछली के बच्चों को छोड़ने के बाद तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मछलियों में तग़ज़िया बख्श ग़िज़ाइयत वाफिर मक़दार में पाई जाती है। मछलियों की अफजाइश और खरीदो फरोख्त सूदमंद कारोबार में शामिल है। उन्होंने मुकामी मुदिराज और गंगा पुत्र कबाइल को अफजाइश रमकियात के जरिए रोजगार हासिल करने और तरक्की हासिल करने का मशवरा दिया। इस मौके पर सदर बल्दिया टी राजेश्वर राव, सदर जिला परिषद के विजया, सदर नशीन रियासती एससी कॉरपोरेशन बी श्रीनिवास, सदर टाउन कमेटी टी राजकुमार, पी मल्लैया, मोहम्मद जाकिर खान, सदर मस्जिद कुरैश कमेटी मोहम्मद अकबर शाह, डायरेक्टर मार्केट कमेटी मोहम्मद फिरोज खान और दूसरे बीआरएस कायदीन और कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद थी। महबूबनगर में साबिक सदर जमहूरिया हिंद बाबा मिसाइल और भारत रत्न डॉक्टर अब्दुल कलाम के 91वें यौम पैदाइश के मौके पर कुल जमाती मुस्लिम राब्ता कमेटी की जानिब से मोहम्मद मोहसिन खान कन्वीनर की क़ियादत में साबिक सदर जमहूरिया हिंद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भरपूर खराज पेश किया गया। इस मौके पर महबूबनगर के न्यू टाउन इलाके में वाक़ बाबा मिसाइल और भारत रत्न डॉक्टर अब्दुल कलाम के मुजस्समे को गुलाए क़िदत पेश किए गए और उनकी मुल्क कौम के लिए खिदमात को याद करते हुए उनकी तर्ज ज़िंदगी को अपनाने की कौम के नौजवानों को तलकीन की। इस मौके पर कुल जमाती कायदीन जिसमें अब्दुल हादी एडवोकेट, सदर जिला मजलिस मोहम्मद अब्दुर्रहमान, सदर नशीन ज़र मार्केट कमेटी मकसूद बिन अहमद जाकिर एडवोकेट, सदर यूथ मजलिस सैयद सादुल्लाह हुसैनी, बल्दी फ्लो लीडर मजलिस मोहम्मद शब्बीर अहमद, बल्दी फ्लो लीडर टीआरएस मोहम्मद तकी हुसैन, कोऑर्डिनेटर के अलावा दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। बादजा महकमा बल्दिया की जानिब से सदर नशीन बल्दिया केसी नरसिमुलू, सदर नशीन बल्दिया की क़ियादत में कमिश्नर बल्दिया मोहम्मद शब्बीर, बल्दी फ्लो लीडर टीआरएस सैयद सादुल्लाह हुसैनी, बल्दी फ्लो लीडर मजलिस अरशद खान काउंसलर, अरशद अली को कॉप्शन काउंसलर और दीगर ने मुजस्समा डॉक्टर अब्दुल कलाम पर गुलाए क़िदत पेश करते हुए उन्हें खराज पेश किया। आज हमारे मुल्क भारत के मिज़िलमैन कहलाने वाले साबिक़ सदर जमहूरिया अब्दुल कलाम साहब का यौम पैदाइश के मौके पर हमने आज उनके मुजस्समे पर गुलाए अक़ीदत पेश करते हुए ख़राज तहसीन पेश किया है। हमें फ़ख्र है कि मादर हिंद के ऐसे सपूत थे जिन्होंने पूरी दुनिया में अपना नाम कमाया और बीजेपी जैसी फाजिल ताकत हुकूमत ने भी उनको अपनी जानिब से उनको मुल्क का सदर जमहूरिया मुंतखब किया। बड़े अफसोस की बात है कि मुल्क में नामवर सदर जमहूरिया जिसको मिज़िलमैन कहा जाता है, उन मिज़िलमैन की यौम पैदाइश को सरकार ने बिल्कुल तरफ नज़रअंदाज कर दिया है। हुकूमत का काम था कि वो आज की पर यहाँ पर आना हुआ। सारे कुल जमात के लीडर, टीआरएस के कायदीन, दूसरे भी कायदीन, एमआईएम के कायदीन सब आए। बड़ी खुशी की बात है। ये अब्दुल कलामी हैं जो सब मिलकर आए हैं उनके लिए। मैं आज के यूथ वकाराबाद डिस्ट्रिक्ट अवामी आवास फोरम के ज़ेर-ए-तमाम साबिक़ सदर जमहूरिया हिंद बाबा मिसाइल और भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पैदाइश तकारीब का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर फोरम के जिला सदर पी अशोक, टाउन सदर श्रावण कुमार, जिला
खजांची अरुण प्रसाद, जिला सोशल मीडिया इंचार्ज रामलू मुशीर चंद्रशेखर ने शिरकत की। इस मौके पर फोरम के जिला सदर अशोक ने कहा कि भारत रत्न और साबिक सदर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का शुमार दुनिया के चंद दानिश्वरों में से होता है। ताहम उन्होंने कहा कि आजिज़ाना जिंदगी में लोगों के लिए उनकी कोशिशें नाकाबिले फरामोश रहीं। उन्होंने कहा कि वो एक अजीम इंसान थे जिन्होंने हिंदुस्तान को मिसाइल की दौलत दी और अपने मुल्क की अजमत को अपनी इल्मी ताकत से दुनिया को दिखाया। आज के माशरे में जहां अपने फायदे के लिए खुदगर्जी बढ़ रही है, वहीं अब्दुल कलाम वो अजीम इंसान थे जिन्होंने बेलौस और इंकिसारी से अपनी पूरी जिंदगी दिफा के मैदान में मुल्क की तरक्की के लिए काम कर दिखाया। जिला कलेक्टर निजामाबाद सी नारायण रेड्डी ने तजवीज पेश की कि हमारा गांव हमारे स्कूल प्रोग्राम के तहत शुरू किए गए कामों को तरजीह दी जानी चाहिए ताकि निजामाबाद जिले के सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे को मजीद बेहतर बनाया जा सके। पहले मरहले में जिले के तमाम 114 मंजूरशुदा स्कूलों में एक हफ्ते के अंदर तमाम काम मुकम्मल करने की वाज़ेह मोहलत दी गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कलेक्टर ने मुतालिका अहदेदारों के साथ इस प्रोग्राम के साथ धरानी, पोडू, अराजियात, तेलंगाना रूरल स्पोर्ट्स ग्राउंड से मुताल्लिक मसाइल का जायजा लिया। इस मौके पर कलेक्टर ने जिले के हर मंडल के अहदेदारों से हमारा गांव हमारे स्कूल के कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। कलेक्टर ने याद दिलाया कि फंड की कोई कमी नहीं है और काम शुरू होने के फौरन बाद बिल अदा किए जा रहे हैं। उन्होंने हिदायत दी कि किसी भी सूरत में कोई भी काम इल्तवा में न रखा जाए। साथ ही मंडल स्पेशल ऑफिसर्स को हिदायत दी गई कि वो फील्ड सतह पर स्कूलों का दौरा करें और कामों की निगरानी करें ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि कामों में मेयार में कमी न आए। इमदादुल फुकरा ट्रस्ट शहर हैदराबाद का एक नुमाया इदारा है। यहाँ यतीम लड़कियों के लिए तालीम और तरबियत और उनकी किफालत का नज्म किया जा रहा है। इस इदारे को हुकूमत तेलंगाना की जानिब से यतीम खाना चलाने का लाइसेंस भी हासिल है। वाज़ेह है कि इमदादुल फुकरा यतीम खाना शहर के एक पसमानदा इलाके बिस्मिल्लाह कॉलोनी वेंकटपुर नज़ शाहीन नगर में वाक़ है। इस इदारे में लड़कियों की दीनी और तरीक़ी तालीम का एहतमाम किया जाता है। इसके अलावा दस्तकारी, टेलरिंग और दीगर रोजगार पर मबनी महारती कोर्सेज भी सिखाए जाते हैं। खासतौर पर यतीम तालिबात की हिफाजत के लिए तमाम तर हिफाजती और कानूनी इंतजाम भी किए गए हैं। चेयरमैन इमदादुल फुकरा ट्रस्ट अजमतुल निसा ने और या तलबा से ख्वाहिश की कि वो इस सहूलत से फायदा उठाएं। हैदराबाद शहर के अलावा तेलंगाना के अजला और दीगर रियासतों से भी अफराद फायदा उठा सकते हैं। उन्होंने बताया कि यतीम लड़कियों की काउंसलिंग और अखलाकी तरबियत पर खुसूसी तवज्जो दी जाती है। इस इदारे में सिंगल प्रिंट तालिबात को भी दाखिला दिया जाता है। विमेंस पुलिस स्टेशन CCS की इंस्पेक्टर पुलिस माधवी लता ने मीडिया से बात करते हुए उनके पास हर रोज 10-15 घरेलू तशद्दुद के मामलों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इनमें से ज्यादातर मामलात को काउंसलिंग के जरिए हल किया जाता है, लेकिन संजीदा मामलात में जहां खवातीन के साथ मारपीट की गई और जख्म के निशानात मौजूद हैं, उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई जाती है। मेरा नाम माधवी लता, मैं वुमेन पुलिस स्टेशन CCS का इंस्पेक्टर हूँ। मैं इधर 3 साल से वर्क कर रही। वुमेन पुलिस स्टेशन में तो 15 ईयर्स से वर्क कर रही। सब इंस्पेक्टर है सो जब से काम कर रही। वुमेन पुलिस स्टेशन से बिल्कुल 498A 498A वो 406 506 डील करते। हमारे कहने वाइफ एंड हस्बैंड डिस्प्यूट्स, हरासमेंट केसेस आते इधर। हरासमेंट केसेस आते हमको हर एक दिन 12 से 15 तक कंप्लेंट्स आता। इसमें हम भरोसा से काउंसलर्स है इधर 3 काउंसलर्स हमारे बिल्डिंग के ऊपर काउंसलिंग सेंटर है, उधर काउंसलिंग के लिए भिजाते हैं। ज़्यादा हरासमेंट रह के हमको बिल्कुल फिजिकल इंजरीज कुछ रह के ज़्यादा लड़ाई से हरासमेंट ज़्यादा है तो हमको डायरेक्ट FIR होना बोल के पूछे तो FIR ही करते विदाउट काउंसलिंग। जिले विकाराबाद के तांडूर में वाक़े इंदिरा चौक में पुलिस की जानिब से 2 व्हीलर गाड़ियों की तलाशी ली गई। इस मौके पर इंस्पेक्टर पुलिस तांडूर के राजेंद्र रेड्डी ने बताया कि तांडूर के इंदिरा चौक में शाम 4 बजे से शाम 6 बजे तक बगैर रजिस्ट्रेशन, बगैर नंबर प्लेट और गलत नंबर प्लेट्स लगाकर चलाई जाने वाली 110 गाड़ियों को जब्त किया गया।
हवा के कम दबाव के जरिए असर शहर हैदराबाद के कई इलाकों में बारिश हुई। बंजारा हिल्स, मियापुर, चंदानगर, खैरताबाद, सोमाजीगुड़ा, मुशीराबाद, चिकटपल्ली, भोलकपुर, कबाड़ीगुड़ा, जवाहर नगर, दोमलगुड़ा, कुकटपल्ली, हैदरनगर, आलविन कॉलोनी, निजामपेट और प्रगति नगर में बारिश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक रियासत में इस माह की 17 तारीख तक हल्की से औसत बारिश का इम्कान है। इसी दौरान निजामाबाद शहर में शदीद बारिश हुई। आधे घंटे तक शदीद बारिश हुई, जिसके नतीजे में नशीबी इलाकों में पानी दाखिल हो गया। रेलवे स्टेशन में घुटनों तक पानी दाखिल हो गया। जिले में एक हफ्ते से जारी बारिश के बाईस धान की फसलों को नुकसान पहुंचा, जमींबोस हो रही है। कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा में शदीद बारिश की वजह से तमाम सड़कों पर पानी जमा हो गया। संगारेड्डी जिले के जहीराबाद और जिर्रा संगम मंडलों में शाम के वक्त मूसलाधार बारिश हुई। हनमकुंडा में मूसलाधार बारिश से अहम सड़कों पर पानी जमा हो गया है। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।